हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम केमिस्ट्री की बायोमोलिकुल चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में हर रोज़ आता रहता है। हमारी मिशन है 31 अगस्त। तो इसी साल हमें उड़ीसा के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को क्रैक करना है। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के बारिश की मौसम आ गया है, बाहर रेनिंग हो रहा है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेनिंग की वजह से वीडियो में थोड़ा अपलोड में थोड़ा डिस्टर्ब आएगा क्योंकि अपलोडिंग ही नहीं होगा, देर होगा। तो आप ज़रा वेट कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सारे क्वेश्चन के डिस्कशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे क्योंकि तुम कमेंट करते थे कि हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आज हम एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिएजेंट यूज्ड इन रफ डिग्रेडेशन इज। द रिएजेंट यूज्ड इन रफ डिग्रेडेशन इज। ऑप्शन ए बियर्स reagent, ऑप्शन बी टॉलेंस reagent, ऑप्शन सी फेंटन reagent एंड ऑप्शन डी बेनेडिक्ट reagent। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फेंटन reagent। द reagent used in of degradation is फेंटन reagent। फेंटन reagent क्या है? ए प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट हायर aldose टू लोअर वन। ए प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट हायर aldose टू लोअर वन। तो इट्स फेंटन reagent। एग्जाम्पल है Fe2 प्लस H2O2। Fe2 प्लस H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉल्यूशन of D-glucose in water rotates the plane polarized light. Option A to the right, option B to the left, option C to the either side and option D none. तो correct answer is option A to the right। the solution of D-glucose in water rotates in the plane polarized light to the right क्योंकि natural glucose is dextrorotatory and thus glucose is also known as dextrose। जो नेचुरल ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, दस ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफिनोज ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड, ऑप्शन सी ट्राइसैकेराइड एंड ऑप्शन डी नॉन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ट्राइसैकेराइड। राफिनोज इज ट्राइसैकेराइड क्योंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ इट वन हाइड्रोलाइज गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। जो वन मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोलाइसिस में गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ईच ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, amino acid present in insulin are option A 51, option B 15, option C 25 and option D 475। तो correct answer is option A 51। insulin has about 51 amino acid। next question, which are not the essential constitute of balanced diet? Option A carbohydrate, option B fats, option C proteins and option D hormones। तो correct answer is option D hormones। Hormones are the not essential constitute of balanced diet, rest all the essential constituent of diet। next question, the hormone thyroxine option A is secreted by pancreas, option B is secreted by thyroid, option C decrease blood sugar and option E does not stimulate metabolism। तो correct answer is option B is secreted by thyroid। The hormone thyroxine is secreted by thyroid। It is an amine hormone secreted from thyroid which stimulates rate of oxidative metabolism and regulates general growth and developments। next question, which one of the following protein transport oxygen in the bloodstream? Option A myoglobin, option B insulin, option C albumin and option D hemoglobin। तो correct answer is option D hemoglobin। oxygen in the bloodstream hemoglobin।
hemoglobin transport oxygen in the blood stream. Next question. Which amino acid has no asymmetric carbon? Option A histidine, option B glycine, option D alpha alanine, and option D threonine. The correct answer is option B glycine. Glycine is this structure है कि CH2 COOH NH2 having no asymmetric carbonation. Next question. Which one is a test for protein? Option A Bilstein test, option B Burette test, option C Benedict test, and option D Molik test. The correct answer is option B Burette test is the test of protein. Our correct answer is option B. Next question. The destruction of biological nature and activity of proteins by heat or chemical agent is called. Option A dehydration, option B denaturation, option C denitrogenation, and option D deamination. The correct answer is option B denaturation. The destruction of biology, nature and activity of proteins by a heat or chemical agent is called denaturation. After denaturation, soluble proteins becomes insoluble, the process which brings in the changes in physical and biological activity of proteins. उसका एक्सप्लेनेशन समझ आया तो यदि आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following biomolecules always contain nitrogen? Option A carbohydrate, option B protein, option C oils and fats, and option D waxes. So correct answer is option B proteins. Proteins are the following biomolecules always containing nitrogen. क्योंकि proteins are the nitrogenous polypeptide molecule having C NH2 O linkage. Next question. Which of the following is not proteins? Option A wool, option B nail, option C enzyme, and option D nucleoside. The correct answer is option D nucleoside is the following is not protein. The nucleoside is sugar plus base. Sugar plus base. तो एक not protein. Next question. Kawasaki is caused by the deficiency of. Kawasaki is caused by the deficiency of option A vitamins, option B hormones, option C amino acid, and option D essential amino acid. So correct answer is option C amino acid. Kawasaki or car is caused by the deficiency of amino acid. If the deficiency of essential amino acid causes disease like Kawasaki, in which water balance of body is distributed. तो बारिश थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन. साइट्रस फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन. ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी डी, एंड ऑप्शन डी के. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Citrus fruits are an important source of vitamin B. Sorry, correct answer is option B, vitamin C. So citrus fruits are an important source of vitamin C. तो correct answer is option B, C. क्योंकि जैसे कि लेमन, ऑरेंज ऐसे आर द सोर्स ऑफ विटामिन सी. लेमन जैसे एक एग्जाम्पल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following compound is not a vitamin? Option A ascorbic acid, option B thiamine, and option D testosterone, and option B riboflavin. The correct answer is option C testosterone. ये तो हार्मोन है, ये नॉट ए विटामिन क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज एन हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which vitamin contain nitrogen? Option A vitamin A, option B vitamin C, option vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin B, and option D vitamin D. तो correct answer is option C vitamin B. कि nitrogen is present in all vitamin B, that is vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12. Next question. The chemical messengers produced in the endocrine ductless gland are grouped as option A polypeptides, option B hormones, option C bile salts, and option D purines.
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी hormones. The chemical messenger produced in the endocrine glands are grouped as hormone. क्योंकि hormone are neither protein or steroid or simple organic compound produced by the endocrine glands and are secreted to blood, which are carried to all parts of body where they regulate many metabolic function of the organism. Next question. आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा. ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए ग्रोथ विटामिन, ऑप्शन बी आस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव विटामिन एंड ऑप्शन डी सनशाइन विटामिन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सनशाइन विटामिन. विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following vitamin contain isoprene unit? Option A. Which of the following vitamin contain isoprene unit? Option A vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin B2 and option D vitamin D. The correct answer is option A vitamin A. Vitamin A contain isoprene. Next question. Nucleotides and nucleosides mainly differ from each other in option A presence of phosphate units, option B presence of base units, option B presence of nucleic acid and option D none. The correct answer is option A presence of phosphate unit. Nucleotides and nucleosides mainly differ from each other in phosphate units क्योंकि nucleotides have phosphate units. Next question. Vitamin which is believed to cure common cold is option A vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin K and option D vitamin E. The correct answer is option B vitamin C which is believed to cure common cold. Vitamin A it cures cold effect. Next question. Which of the following vitamins is present in cod liver oil? Option A vitamin A, option B vitamin B12, option C vitamin B1 and option vitamin C. तो इससे कौन सी विटामिन है जो कि कॉड लिवर ऑयल में प्रेजेंट होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए प्रेजेंट इन द कॉड लिवर ऑयल लाइक मिल्क, बटर, किडनी, एग यॉक, लिवर, फिश ऑयल एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द विटामिन that is the most readily manufactured in our bodies is option A vitamin A, option B vitamin B, option C vitamin C and option D vitamin D. जो कि कौन सी विटामिन है जो कि रेडिली मैन्युफैक्चर्ड होता है आवर बॉडी में? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन डी. कि विटामिन डी है जो कि मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी क्योंकि इट प्रेजेंट्स इन द सनलाइट ऑफ बॉडी मैन्युफैक्चर्स विटामिन डी. Next question. An example of water soluble vitamin is an example of water soluble vitamin is option A vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin D and option D vitamin E. तो correct answer is option B vitamin C क्योंकि ये के वाटर सल्यूबल विटामिन होता है जो विटामिन सी क्योंकि ए डी ई विटामिन ए डी ई जो कि ये फैट सल्यूबल विटामिन होता है और के भी होता है. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा के ई डी ए ऐसे भी याद कर सकते हैं. कीड़ा ये जो कीड़ा है वो कि फैट सल्यूबल विटामिन होता है तो इससे विटामिन सी वो कि वाटर सल्यूबल विटामिन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस ऑप्शन ए स्टेरिलिटी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरी एंड ऑप्शन डी स्कॉर्बी. जो कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इट स्टेरिलिटी. इट कॉजेस स्टेरिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The vitamin which is water soluble and antioxidant is the vitamin which is water soluble and antioxidant is option A vitamin E, option B vitamin D, option C vitamin C and option D vitamin B1. तो correct answer is option C vitamin C is a water soluble and antioxidant. Next question. A vitamin
which plays a vital role in the coagulating property of blood is option A vitamin A, option B vitamin D, option C vitamin E and option D vitamin K। तो इनमें से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन के, क्योंकि प्लेज ए वाइटल रोल इन दी कोगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, क्योंकि विटामिन के डेफिशिएंसी कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग इन इंजुरी। Scurvy is caused due to deficiency of option A vitamin B1 or option D vitamin B2, option C vitamin ascorbic acid and option D glutamic acid। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, विटामिन सी है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज इज स्कॉर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरीबेरी इज caused due to option A vitamin A, option B vitamin B1 and option B vitamin C and option D vitamin D। the correct answer is option B vitamin B1, जो कि vitamin B1 is deficiency of beriberi disease। next question, which one of the following vitamin deficiency causes rickets? option A vitamin A, option B vitamin B, option C vitamin C and option D vitamin D। जो कि इनमें से कौन सी विटामिन ए जो कि डिफिशिएंसी से रिकेट्स होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन डी, विटामिन डी deficiency causes rickets। next question, which one of the following vitamin contain a metal atom? which one of the following vitamins contain a metal atom? option A riboflavin, option B vitamin B12, option C vitamin A and option D vitamin B6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 की ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामिन इज C63H88O14N14PCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी इज ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी अमाइड, ऑप्शन सी अमाइन एंड ऑप्शन डी लैक्टोन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अल्कोहल, क्योंकि इट्स कंटेन OH ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one has coiled helical structure? which one has coiled helical structure? option A proteins, option B lipids, option C carbohydrate and option D vitamins। तो correct answer is option A protein, protein has coiled helical structure। next question, hemoglobin is option A transport protein, option B enzyme, option C genetic protein and option D defense protein। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, सॉरी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्योंकि हीमोग्लोबिन इज एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is a hormonal protein? option A myosin, option B keratin, option C trypsin and option D insulin। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इंसुलिन, इंसुलिन इज ए hormonal protein। next question, which one is a simple liquid? which one is a simple liquid? option A option A triglyceride, option B lecithin, option C steroid and option D carotenoids। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी carotenoids। carotenoids is a simple liquid। next question, male sex hormones are known as option A androgen, option B estrogen and option D progesterone and option D corticosteroids। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड्रोजन, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 इज नोन एज ऑप्शन ए रेनिटॉल, ऑप्शन बी थायामिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लाविन एंड ऑप्शन डी बायोटिन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेनिटॉल, रेनिटॉल इज विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस? ऑप्शन ए बेरीबेरी, ऑप्शन बी स्कॉर्बी, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन डी गोइट्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस वीडियो का बायोमोलिक्यूल चैप्टर का और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हम पार्ट 2 में, इसी वीडियो के बाद हम पार्ट 2 का एक लाएंगे जो कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर की पार्ट 2 होगा। इसे हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम उसका और जो भी क्वेश्चन बाकी रहेगा उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई चिंता नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। नंबर ऑफ ATP molecules needed in dark reaction to get one molecule of C6H12O6 of CO2 and H2O is option 18, option B 27, option C 36 and option D 45। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 18। ऑप्शन ए 18 क्योंकि इन डार्क रिएक्शन 18 ATP molecules आर इन्वॉल्व्ड, जो कि 6H12O6 जो कि ग्लूकोज की फार्मूला होता है, क्योंकि 18 molecules in dark reaction are involved। Next question, molecular formula of deoxyribose is option A C6H12O6, option B C6H12O5, option C C5H10O4 and option D C12H22O11। तो correct answer is option C C5H10O4। Deoxyribose has molecular formula C5H10O4। तो correct answer is option C। Next question, starch undergoes hydrolysis in presence of mineral acid to give option A glucose, option B fructose, option C maltose and option D sucrose। तो correct answer is option A glucose, क्योंकि glucose is obtained on acidic hydrolysis of starch। Next question, glucose and fructose are option A optical isomers, option B functional isomers, option B chain isomers and option D position isomers। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फ्रुक्टोज। ऑप्शन बी फंक्शनल आइसोमर्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि ग्लूकोज जो कि अल्डोहेक्सोज एंड फ्रुक्टोज जो कि केटोहेक्सोज आर टू फंक्शनल आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला 6,6H12O6 बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जो कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है जो कि 6,6H12O6 होता है, बट इसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। तो चलो इसका हम एक क्वेश्चन छोड़ गए थे। Which one is a pentose sugar? Option A glucose, option B fructose, option B arabinose and option D galactose। तो correct answer is option C arabinose, क्योंकि arabinose is a pentose sugar जिसका फॉर्मूला है C5H10O5। C5H10O5। Next question, which one is used for silvering of mirror? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। जो कि सिल्वरिंग मिरर किया जाता है उनमें से कौन से यूज किया जाता है सिल्वरिंग मिरर करने के लिए? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ग्लूकोज। ग्लूकोज बीइंग एन अल्डिहाइड रिडॉक्स टॉलरेंस रिएजेंट अम्यूनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू मेटालिक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गिव्स रेड कलर विथ फेलिंग सॉल्यूशन? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी बेंजाल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी केन शुगर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज बीइंग एन अल्डिहाइड रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेशन ऑफ Cu2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज यूज्ड इन सिल्वरिंग मिरर? ये भी थोड़ी काफ़ी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिल्वरिंग मिरर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ग्लूकोज। ग्लूकोज बीइंग aldohexose with CHO bond CHO group can reduce tolerance reagent जो कि अम्यूनिकल सिल्वर नाइट्रेट है टू फ्रॉम सिल्वर मिरर। जो ग्लूकोज होता है उसका CHO ग्रुप कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस होता है जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है टू सिल्वर मिरर
फॉर्म होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गिव्स रेड कलर विथ फिलिंग सॉल्यूशन। यहाँ भी तो काफ़ी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच गिव्स रेड कलर विथ फिलिंग सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन टू फॉर्म रेड प्रेसिपिटेशन ऑफ CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स ऑप्शन ए इन्वर्ट शुगर, इक्वल मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि इन्वर्ट शुगर जो कि इक्वल मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है क्योंकि C6H12O6 हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, चलो देखते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 प्लस H2O। हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस के लिए हम प्लस H2O करना पड़ता है। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, जो कि C6H12O6 प्लस यही सेम C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केटोहेक्सोज। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी स्टार्च। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज ए केटोहेक्सोज। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला था C6H12O6 हैविंग X = 0, तो ये कीटो ग्रुप हैविंग कीटो ग्रुप, तो वो केटोहेक्सोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएजेंट व्हिच मे बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन केन शुगर एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन इज। ऑप्शन ए मोलिस रिएजेंट, ऑप्शन बी आयोडीन सॉल्यूशन, ऑप्शन सी बेयर्स रिएजेंट एंड ऑप्शन डी फेलिंग सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि केन शुगर जो कि सुक्रोज होता है इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड कैन नॉट रिड्यूस्ड फेलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विथ टाइम ऑफ freshly prepared solution of sugar is known as option A specific rotation, option B inversion, option C rotatory motion, option B mute rotation। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी म्यूट रोटेशन, क्योंकि द चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज कॉल्ड म्यूट रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज फ्रुक्टोज, क्योंकि फ्रुक्टोज इज ए स्वीटेस्ट शुगर। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ऑप्शन ए फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च इज एज ए होमोपॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ऑप्शन ए ग्लूकोज ओनली, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड लैक्टोज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जो कि सुक्रोज होता है C12H22O11 होता है, जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देता है। द कॉमनेस्ट डाइसैकेराइड हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑप्शन ए C10H18O9, ऑप्शन बी C10H20O10, ऑप्शन बी C11H22O11, ऑप्शन डी C12H22O11। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी C12H22O11, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड इज C12H22O11। The disaccharide present in milk is option A sucrose, option B lactose, option C maltose and option D none of these। तो correct answer is option B lactose, क्योंकि milk contain lactose। lactose का फॉर्मूला क्या होता है C12O22
C12O22 sorry H22O11 C12H22O11. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन ई। ये क्वेश्चन भी एम्स एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सब्सटेंस चार्ज व्हेन हीटेड विथ concentrated H2SO4? Which substance charged with heated with concentrated H2SO4? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि concentrated H2SO4 oxidize carbohydrate with charring. Next question, the functional group which is found in amino acid is option A COOH, option B NH2, option B CH3 and option D both A and B. तो correct answer is option D both A and B, जो कि COOH and NH2 both होता है, जो कि functional group which found in amino acid. तो correct answer is option D both A and B, जो कि COOH and NH2 होता है. Next question, lack of vitamin B1 causes. Lack of vitamin B1 causes option A scurvy, option B beriberi, option C डर्माटिटिस, ऑप्शन डी लिपिस इन्फ्लामेशन. तो इसी क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कशन किए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी नीचे कमेंट में दीजिए, बिना कोई चीटिंग करने, बिना कोई चीटिंग किए आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे अभी कमेंट में दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? तो ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी माल्टोज. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रुक्टोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑपरेशन. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑपरेशन ऑफ ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ऑप्शन बी वैन डेर वाल्स फोर्सेस एंड ऑप्शन डी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. जो कि रीजन होता है जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑपरेशन फॉर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑफ ऑपरेशन ऑफ, इनमें कौन रीजन होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज गिव्स ऑप्शन ए डी फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी डी राइबोज, ऑप्शन सी डी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी जेड ग्लूकोज. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो कि डी ग्लूकोज होता है, जो कि डी सेलुलोज ऑफ हाइड्रोलाइसिस गिव्स डी ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम व्हिच हाइड्रोलाइसिस ट्राइग्लिसराइड्स टू फैटी एसिड एंड ग्लाइसोरेल इज कॉल्ड. ऑप्शन ए मालाटोज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन डी पेप्सिन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाइपेज, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड होता है जो कि लाइपेज के प्रेजेंस से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल पे कन्वर्ट होता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बी लाइपेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय ऑप्शन डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन सी ईथर बॉन्ड एंड ऑप्शन डी पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑफ इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोनोसैकेराइड्स CnH2 and ON the minimum value of N is option A 2, option B 3, option C 4 and option D 5. तो correct answer is option B 3, क्योंकि जो कि अल्डोट्रायोज एंड केटोट्रायोज जो कि C3H6O3 होता है और स्मॉलेस्ट शुगर, जो कि अल्डोट्रायोज एंड केटोट्रायोज C3H6O3 आर द स्मॉलेस्ट शुगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन एन ओलिगोसैकेराइड इज ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 11. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 9,
क्योंकि बाय कन्वेंशन वो 2 गुण 9 के कन्वर्ट होता है। देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन एन ओलिगोसैकेराइड इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज ऑप्शन ए aldotриयोज, ऑप्शन बी aldotetroज, ऑप्शन सी aldopentoज एंड ऑप्शन डी aldohexoज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए aldotरियोज, क्योंकि जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है जो कि HOCH2 HOCH2 CHOH CHO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड इज ऑप्शन ए aldotरियोज, ऑप्शन बी aldotetroज, ऑप्शन डी aldopentoज एंड ऑप्शन डी aldohexoज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी aldopentoज, क्योंकि राइबोज in RNA and deoxyribose in DNA are pentose sugar. Next question, DL erythrose and DL therose are isomers of option A aldotriose, option B aldotetroze, option C aldopentoze and option D aldohexose। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी aldotetroze, क्योंकि aldotetroze with 2 chiral carbon forms 2n is equal to 2 to the power square is equal to 4 isomers, जो कि 4 isomers फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 32। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 16, क्योंकि ग्लूकोज विथ 4 चाइरल कार्बन एटम फॉर्म्स 2 to the power 4, जैसे कि पहले किया था 2 to the power 4 is equal to 16 isomers। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपाइरानोज आर कॉल्ड ऑप्शन ए एनामोर्स, ऑप्शन बी डायस्टेरोमोर्स, ऑप्शन बी एपीमोर्स एंड ऑप्शन डी एनांटीमोर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एनोमोर्स, क्योंकि अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट एनोमेरिक कार्बन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड मानोज आर ऑप्शन ए C2 एपीमर्स, ऑप्शन बी C3 एपीमर्स, ऑप्शन सी C4 एपीमर्स एंड ऑप्शन 5 C5 एपीमर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी C4 एपीमर्स, क्योंकि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट C4 अदर देन एनोमेरिक C1। तो ये रहा आज का टॉप 50+ केमिस्ट्री क्वेश्चन, जो कि बायोमोलिक्यूलर चैप्टर से आया था। ये आज हम टॉप 50+ क्वेश्चन डिस्कशन करें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट भी कर देना। और इसका पार्ट 2 बायोमोलिक्यूलर चैप्टर का और जो क्वेश्चन बचा गया और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूलर चैप्टर से। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ी रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और तुम्हारे फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आज के लिए रहते, थैंक यू।